Okay, Ji, welcome back. And we are in our third session, and we are going to talk about innovative action and mindfulness. When we talk about innovative action and mindfulness, the author is talking about the behavior modification system. The behavior modification system is basically concerned with two perspectives. One is behavior inhibition system, which is avoidant mode of mind and which is based upon fear, disgust, anxiety, and aversion. And then there is behavior activation system, which is approach mode of mind, and it is based upon enthusiasm, pride, interest, and curiosity. Okay. It is said that there is a correlation between creativity, mindfulness training uh, is highly likely to take place. And it is also discussed and also advocated that the people who are following behavior activation system, which is the approach mode of mind, they are more constructive in their thought processes as compared to the people who are focusing upon behavior inhibition system, which is avoidant mode of mind. Because होता ये है कि avoidant mode of mind जो है वो हमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वर्किंग से निकालकर एमिगडाला हाईजैक में ले जाता है, और उस एमिगडाला हाईजैक में वी आर अगेन हैविंग कंसर्न्स रिलेटेड टू द फियर, डिस्गस्ट, एंजाइटी एंड एवर्जन, व्हिच एक्चुअली एग्जॉस्ट अवर एनर्जी एंड एग्जॉस्ट अवर थिंकिंग पैटर्न्स. There is an experiment, discussed in the article, and the experiment was the two set of students were given the maze. उसमें the maze was identical except कि एक तरफ reward दिखाया जा रहा था, which was a cheese, और दूसरी तरफ एक owl दिखाया जा रहा था, which was the fear, and the mouse has to track its way out. अब the students, the people who are engaged in the fearful context of the owl, they were taking the same amount of time as compared to the people who are doing the reward maze, जिसमें कि वो माउस को बाहर लेकर जा रहे हैं, but in a happy mood, in a happy context, which is going to get the cheese. Okay. इसके जो afterwards results हमारे सामने आए, they were really astonishing, and the results were that the people with the behavior अप्रोच, जो लोग अप्रोच मोड के साथ आ रहे थे, बीएस अप्रोच के साथ आ रहे थे, दे वर स्कोरिंग मोर ऑन द क्रिएटिविटी टेस्ट, बिकॉज अप्रोच मोड्स ऑफ माइंड ट्रिगर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. And that is the reason a couple of times it is argued and discussed that we should be thinking positive, we should be thinking optimistically, because optimist thinking, positive thinking, वो basically हमें ज़्यादा creative और innovative बनाती है, जबकि negativities की तरफ जाना, negativities को सोचना, fearful anxieties के अंदर चले जाना, ये चीज़ें हमारी energies को technically exhaust कर देती हैं. Then your article is developing the context of mindfulness, attention, and cognitive control, and it is said that mindfulness and attention is basically are two related things. Mindfulness is a quality of attention actually, and the link between inner and outer world ये बेहतर क्रिएट हो पाएगा, हम ज़्यादा बेहतर फोकस कर पाएंगे अगर हम इंटरनली अपनी मेडिटेशन से अपने आप को माइंडफुल वो बना सक रहे हैं. सो प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपीरियंस इज बेसिकली योर माइंडफुलनेस, एंड अटेंशन इज लिंक्ड विद जजमेंट, करेक्टर एंड विल. और ये सब चीजें जो आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे इन द पब्लिक कॉन्टेक्स्ट, इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो ये चीजें तभी आपकी बेहतर हो पाएंगी इफ द इनसाइड ऑफ योर सेल्फ इज मोर सेटिस्फाइड, इज मोर कंफर्टेबल, इज मोर हैप्पी, इज मोर माइंडफुल. सो माइंडफुलनेस और अटेंशन के पर्सपेक्टिव में इट इज सेड कि जब हम फोकस्ड अटेंशन के साथ चलते हैं तो वी कम अप विद ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड वी कम अप विद एरर फ्री वर्किंग. जबकि जब हम स्कैटर्ड अटेंशन से चलते हैं, वेयर देयर आर सो मेनी थॉट्स टिकलिंग योर माइंड, व्हेन योर माइंड इज फुल रादर देन माइंडफुलनेस, तो जब माइंडफुल होगा, स्कैटर्ड थॉट्स होंगी, स्कैटर्ड आइडियाज होंगे, हम बेहद वक्त मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे कि डैन गोलमैन ने भी अपने लेक्चर में हमें बताया कि द माइंड इज एक्चुअली नॉट शेप्ड इन अ वे कि इट कैन गो फॉर अ मल्टीटास्किंग पर्सपेक्टिव. So scattered attention होने की वजह से we'll be having a slower performance and we'll be more error prone. So attention is central to interpersonal relationship, because many a times अगर हम एक किसी शख्स को एक बहुत important, बहुत कीमती, बहुत unique present दें और साथ हम उसे ये कहें कि we don't pay any attention to you या we don't have any time for you, so that present would not mean anything. So remember one thing कि हमारी जो attention है that is of even much more importance as compared to the exchange of material things with the people. So mindfulness is basically the soul of all these things.
सो माइंडफुलनेस ट्रेनिंग के लिए वी नीड टू कम अप विद एंड डेवलप अवर कॉग्निटिव कंट्रोल, कि हम अपने ऊपर एक मुस्तकिल एक कंट्रोल कर सकें अपने इमोशंस को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को। और जब तक हम कॉन्शियस लेवल पे इसकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हम कॉन्शियस लेवल पर इमोशंस को रेगुलेट नहीं करेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अचीव हायर गोल्स। इसी तरह हाई स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर आपको कैसे टैकल करना है, अपने आप को किस तरह स्ट्रेस फ्री रखना है, अपने आप को किस तरह आयरन नर्व्स के साथ वो लेकर आना है, दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर effective and efficient working. Then your author is talking about mindfulness training methods, और mindfulness training methods में he has discussed के एक training method typical जो conduct की जा सकती है, it can be a 8 weeks training method, 2 to 3 hours per day आपको meditation करवाई जाएगी, आपको focused attention की trainings दी जाएंगी, और 45 minutes practice sessions जो हैं वो आपके साथ किए जाएंगे. So इन तमाम mindfulness training से गुजरने के बाद what would be the outcome? Number one, mindful based stress reduction perspectives would be developed and mindfulness based cognitive therapy can take place. तो ये दोनों चीजें आपके माइंड को पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव माइंड, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव पर्सपेक्टिव्स, इसकी तरफ लेकर जाने में मदद वो करती हैं. इसी तरह द मेडिटेशन, यू नो, अभी दलाई लामा के हमने काफी सारी एग्जांपल्स देखी. सो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में लीडर्स आर इनवाइटेड टू बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर अनफोल्डिंग एक्सपीरियंसेस, कि आप अपना सेल्फ कैथारसिस, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ मेडिटेशन वो कर सको, टू कम टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओन सेल्फ, दैट हाउ गुड यू आर टू द वर्ल्ड, हाउ गुड यू आर टू अदर्स, हाउ गुड यू आर टू द फॉलोअर्स, और उसमें हम तमाम तरह की किस्म की जो पॉजिटिविटीज हैं वो किस तरह से लेकर आ सकते हैं. ओके, अब उस मेडिटेशन के बहुत से रंग हैं. इट कैन बी फोकस ऑफ अटेंशन, इट कैन बी योगा, इट कैन बी माइंडफुल ईटिंग, ड्राइविंग, वॉकिंग. आप कोई भी अमल ऐसा जिंदगी में ना करो जिसके बैकएंड के ऊपर रैशनैलिटी, जिसके बैकएंड के ऊपर कॉन्शियस माइंड वर्किंग वो ना हो, बिकॉज अनकॉन्शियस लिविंग आप जितना टाइम भी करोगे दैट वुड बी द वेस्टेज ऑफ योर लाइफ एंड वेस्टेज ऑफ योर एनर्जीज. ओके, तो हमें ये करना है इस माइंडफुलनेस ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव में कि वी हैव टू रिमेन इन आवर कॉन्शियस माइंड एज मच एज वी कुड, राइट? और ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स व्हेन वी आर आउट ऑफ आवर स्लीप. ओके, सो उस वक्त हमारा जो कॉन्शियस माइंड है दैट शुड बी केप्ट फोकस्ड. Then your author is talking about the mechanisms of mindfulness, and in these mechanisms, mindfulness and adaptive challenges, it is said कि आपको जो चीजें जहन में रखनी चाहिए, जो जिन पर्सपेक्टिव पे आपको काम करना है, they are number one, what mind is actually processing. ओके, सो आपके माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है, हाउ माइंड इज प्रोसेसिंग, सो आप उसको कितना पॉजिटिवली कितना नेगेटिवली माइंड एंटरटेन कर रहा है, एंड व्हाट इज एक्चुअली बीइंग प्रोसेस्ड. तो फिर आप सारी थिंकिंग के बाद आपके जहन में नताइज क्या निकल रहे हैं, व्हाट वर द रूट कॉजेज, व्हाट वर द कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट वर द लॉजिक्स बिहाइंड योर थिंकिंग पैटर्न्स, एंड ऑब्वियसली उस थिंकिंग के नतीजे के तौर पर आप किस नुक्ताए अंजाम पर पहुंच रहे हो. दीज आर ऑल द थिंग्स जिनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में वो जरूरी होगा. एक और चीज याद रखिएगा कि जब हम एक लीडरशिप पर्सपेक्टिव में माइंडफुलनेस को देख रहे हैं, तो द लीडरशिप कैन आल्सो बी हाईली स्ट्रेसफुल, बिकॉज आपको बहुत तरह के माइंड्स के साथ बेवक्त वक्त डील करना है. कोई शख्स आपके साथ उम्र में छोटा है, कोई शख्स आपके उम्र में बड़ा है, कोई शख्स मेल है, कोई शख्स कोई फीमेल है, कोई गोरे रंग का है, कोई काले रंग का है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई किसी नेशनलिटी से ताल्लुक रखता है, कोई किसी एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखता है. सो बेशुमार तरह के पर्सपेक्टिव्स में बेशुमार तरह की लोगों के साथ, डाइवर्सिटी के साथ जब आप टैकल करोगे तो उस डाइवर्सिटी के साथ टैकल करने के कुछ तकाजे होंगे, और उन तकाजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि यू योरसेल्फ शुड रिमेन माइंडफुल. आप फोकस्ड रहो. अगर आपकी अपनी अटेंशन डिस्टॉर्ट हो गई, आप उस डाइवर्सिटी को मैनेज ना कर पाए, तो ऑब्वियसली यू वुड नॉट बी एन इफेक्टिव लीडर. सो उस डाइवर्सिटी के अंदर नो डाउट हमें ख्याल रखना है कि हम कहीं डिस्क्रिमिनेशन का कॉज ना बने, हम कहीं किसी के राइट्स की वायलेशन ना करें. तो वी हैव टू बी अगेन एंड अगेन माइंडफुल एंड मोर माइंडफुल बीइंग अ लीडर. Then your author is talking about mindfulness and the changes to what the mind is processing, and obviously we are talking about this topic in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. Your author says, नीचे जो मैंने क्लिप आर्ट भी आपके लिए यहाँ पर रखा, कि माइंडफुल और माइंडफुल होने में देयर इज अ डिफरेंस. ओके, सो टू रिमेन माइंडफुल, चेंज द कंटेंट. बाज़ औक़ात अपने सोच के अंदाज को वो कंटेंट से चेंज कर दें ताकि आप
की सोच डाइवर्ट होकर एक नए सिरे से अपनी कॉन्फ़िगरेशन वो कर सके। बाज़-औक़ात आपका कॉन्टेक्स्ट बदलना ज़रूरी है। इफ वन थिंग इज बॉदरिंग यू, वन प्लेस इज बॉदरिंग यू, तो यू मूव टू समवेयर एल्स, जहां पर जाकर हो सकता है कि न्यू कॉन्टेक्स्ट में, न्यू सर्कमस्टांसेस में, न्यू एनवायरनमेंट में आप बेहतर तौर पर सोच सको। इफ यू आर थिंकिंग कि यू आर गेटिंग हैविंग हाई लेवल ऑफ टेंशन एंड यू आर सिटिंग इन डार्कनेस, तो मूव टू द ब्राइटनेस। अगर आपको लग रहा है कि इट इज टू ब्राइट टू बी हियर एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मूव टू सम डिम लाइट। ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट चेंज करने की कोशिश करें, आप कंटेंट चेंज करने की कोशिश करें, आप सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपका माइंड अपने आप को रिकॉन्फ़िगर करने में कंफर्टेबल फील करेगा। एंड देन ऑब्वियसली डाइवर्ट फ्रॉम इमोशनली चार्ज थॉट्स। जो चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं, जो चीजें आपको टिकल कर रही हैं, आइडेंटिफाई दोज एंड ट्राई टू रिमेन a little distance, try to maintain a little distance from those things. अब माइंडफुलनेस एंड माइंड प्रोसेसिंग के लिए इट इज सेड कि रीफोकस ऑन समथिंग नेचुरल एंड नॉर्मल, बिकॉज दोज आर द थिंग्स जिससे कि आपका माइंड अपने आप को रिकॉन्फ़िगर करने में वो आसानी हासिल कर लेता है। सस्टेन अटेंशन ऑन न्यूट्रल कंटेंट, ताकि हम किसी भी एग्जैजरेशन से अपने आप को अवॉइड कर सकें। नॉर्मलाइज बाय थिंकिंग पॉजिटिव, सो अपने आप को मनाना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव एंड ट्राई टू कंसिडर अदर अल्टरनेटिव्स एंड रिमेंबर कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज बिकम ओल्ड नाउ। अब जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, देयर कैन बी मेनी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू अचीव योर ऑप्टिमम रिजल्ट्स। तो आप अपने अल्टरनेटिव्स को इकट्ठा करने की कोशिश करें, रादर देन कि अगर आप एक सॉल्यूशन के ऊपर स्टक वो हो गए हैं। Then your author is talking about mindfulness and the changes to how the mind is processing, और उसमें वो अब आपको अप्रोच मेथड की तरफ लेकर जा रहा है कि समटाइम्स कीपिंग द इनपुट सेम, कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंची है, जो आपने प्रोसेसिंग करनी है, यू कीप दैट द सेम। आप चेंज जो करो वो अपने अप्रोच मेथड को फॉलो करो, रादर देन कि आप इनहिबिशन मेथड की तरफ जाओ। आपको BAS को फॉलो वो करना चाहिए। सो अवॉइडेंट मोड, जो कि आपको फियर, डिस्गस्ट, एंजाइटी, रिवर्जन की तरफ लेकर जा रहा है, उसको कॉन्शियस लेवल के ऊपर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें इनटू अप्रोच मोड ऑफ माइंड, व्हिच इज एंथुसियाज्म बेस्ड, प्राइड बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड एंड क्यूरियोसिटी बेस्ड। सो एक लीडर को ये जचता नहीं है, एक लीडर को ये जेबा नहीं देता कि वो फियर की बात करे या डिस्गस्ट की बात करे या एंजाइटी की बात करे, बिकॉज उससे ऑब्वियसली फॉलोअर्स के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो प्योरली नेगेटिव होगी। जिसके बरक्स एक लीडर को हमेशा एंथुसियाज्म, प्राइड, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी की बात करनी चाहिए, जिससे कि लोगों के दरमियान अप्रोच मोड ऑफ माइंड जो है वो ट्रिगर वो हो सके। Then your author is talking about mindfulness and changes to view taken of what the mind is actually processing. So जैसे आपको मैंने पहले अपने सेशन में बताया कि habitual ways of understanding produce habitual reactions. सो आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है, आपको अपने आप को दोबारा से बताने की, समझाने की जरूरत है कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू फोकस अपॉन एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर जस्ट causing you exhaust of your energies and attention and focus. So mindfulness and metacognitive awareness का जिक्र आपका ऑथर करता है। आपको प्रोएक्टिव होना है रादर देन कि आप रिएक्टिव हो। वो आपको इमोशनल डिटैचमेंट सीखनी है रादर देन कि आप इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन एंड अटैचमेंट में चले जाओ। आपको टू डू लिस्ट के बारे में क्लैरिटी रखनी है रादर देन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू की तरफ आप जाओ। और ये याद रखो कि टू डू लिस्ट के अंदर भी आपको ये बात क्लियर हो कि आपने टू डू लिस्ट में जो चीजें ऐड की हैं, व्हाट वर द एक्चुअल मोटिव ऑफ एडिंग दोज थिंग्स। ओके, सो दैट इज द रीजन। कपल ऑफ टाइम्स आई वुड से कि आपको, जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा कि टू डू लिस्ट वर्सेस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप कोई भी इकदाम, कोई भी आप जो एक रद्द अमल, आप कोई भी जो एक पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हो, उसकी रीजन एंड लॉजिक है क्या। आर यू ट्राइंग टू फाइंड सम एस्केप और यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। तो ये चीजों को क्लैरिटी में रखना हमारे लिए जरूरी है। इसी तरह आप सिर्फ फॉलो अजम्पशन नहीं करें, आप अजम्पशन को चैलेंज करना सीखें, आप सवाल पूछना सीखें, आप क्यों पूछना सीखें, आप क्या पूछना सीखें, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे उस वक्त तक चीजों के अंदर जो सुलझाव है वो आना मुश्किल हो जाएगा। सो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में एक बहुत खूबसूरत पैटर्न हमें इस आर्टिकल से मिला, और वो खूबसूरत पैटर्न ये है कि यू नीड टू डेवलप in terms of metacognitive skills, you need to develop the skill of seeing that mind, that your mind or anybody's mind is not where they want it to be.
आपका जहन कहां पर है और वहां पर उसको नहीं होना चाहिए था, इस चीज का सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस में आना वो जरूरी है। Then the skill of detaching their mind from where they don't want it to be, फिर आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सको वहां से जहां पर आप नहीं चाहते कि आपकी सोच जाए। Then you have to develop the skill of placing the mind where they want it to be, फिर आप उस तरफ फोकस अपना लेकर आ सको, उस तरफ अपना रुझान, उस तरफ अपनी सोच लेकर आ सको जहां पर आप उसको पहुंचाना चाहते हो। And the skill of keeping their mind where they want it to be, और फिर अपने आप को मरकूज कर सको उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पर आपको वो चीज मिल रही है जो एक्चुअली आप चाहते थे। सो अपने आप को अनलर्न की कैफियत से निकालकर लर्निंग में लेकर जाने तक, अपने आप को एक ऐसी सोच से हटाकर एक ऐसी सोच तक लेकर जाने में जो कि आपको रिक्वायर्ड है, जिस तरफ आपका तवज्जो होनी चाहिए, इस स्किल को हम मेटाकॉग्निटिव स्किल का नाम वो देते हैं। और ये मेटाकॉग्निटिव स्किल सिर्फ तब डेवलप कर पाएगी व्हेन यू आर एबल टू कम अप विद योर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एंड माइंडफुलनेस ट्रेनिंग एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन। Then your author is talking about findings on the overall benefits of mindfulness training, and he said that in the context of mindfulness meditation, हमारे जो certain न्यूरोसाइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हमें मिली, उसमें we are able to come up with focused attention, we are able to improve our working memory capacity, and we are able to monitor our internal and external stimuli। हम ज्यादा बेहतर तौर अपने फैसलों को क्रिएटिवली इनोवेटिवली कर सकेंगे और ऑब्वियसली उससे हम पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। एंड वंस वी आर ऑन दिस पैटर्न, देन वी विल बी एबल टू ब्रिंग आवर फॉलोअर्स ऑन द सेम स्कीम ऑफ थॉट। इसी तरह माइंडफुलनेस की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो कहता है कि माइंडफुलनेस अलोन इज नॉट पैनासिया। ओके, आप ये नहीं समझ लें कि सिर्फ अगर आप माइंडफुल हो गए तो चीजें वहीं पर हल हो गई। आपको अटेंशनल स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर से बेहतर बनाना है, आपको लेवल ऑफ एम्पैथी को भी इंक्रीज करना है, आपको क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थॉट्स की तरफ जाने के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं उन सबको भी पूरा करना है। तो सिर्फ माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, but no doubt that can be the starting point, no doubt that is basically the gym for your mental exercises। So remember, अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो mindfulness help people to become more present, mindfulness can help people to become less emotionally reactive, mindfulness can help people to be more deliberate and purposeful, and mindfulness can help people to go towards new options for action through times of trial। ठीक है, तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं जो हम माइंडफुलनेस से हासिल कर सकते हैं। और इस सारे आर्टिकल में जो मेन फोकस हमारा रहा कि द लीडर नीड्स टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडफुल एंड देन द फॉलोअर्स वुड बी फॉलोइंग हिम और हर इन द सेम पैटर्न। जैसे आपको मैंने पिछले सेक्शंस में एक दफा कहा था कि फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट ट्राई टू बी माइंडफुल एंड देन एक्सपेक्ट अदर्स टू बी माइंडफुल इन द सेम पैटर्न। So that basically concludes our discussion about the article.